All right, so I guess maximum number of participants have already joined. So in order to understand how does this efficient frontier work, so you can see this graph. I will first of all show you. I will try to make you understand by the help of this graph. You can see these points are different assets, right? And these assets are holding different level of expected return, and these are holding a different level of standard deviation, that is risk. As we have assumed that the risk can be calculated by finding out deviation of its deviation of the asset from its expected return. So right here, for example, we have different assets. So in order to create a portfolio, what we will be required to calculate, we will be required to calculate the combination of different weights. So these lines, you can find out what are these lines. These are the same line what we have just seen, that whenever we are combining two acids with the different weights, we will be able to reduce our risk, right? So every time whenever we are combining two assets, one with the higher you can say return and higher risk, and another with the lower return and lower risk, we will be able to move our risk profile toward the left. And you can find out all of these, you can say, combinations are moving from left from right to the left, right? And these points, right, for example, if I draw this point. So what are these? These are actually different portfolios. These are different portfolio. For example, this is a portfolio, this is a portfolio, this is a portfolio. So in whenever we are talking about efficient frontier, so then we do not consider these assets, rather than we will be only considering these portfolios, right? In order to present this portfolio, we have a different graph, and I will show you that graph. We can see the graph right here as well, but I will go back to the slides. So you can see these points are now different portfolio, different combination of different assets, right? So whenever we are combining different assets, so we are making one, you can say, a group of asset, and that group of asset once again represent a standard deviation and expected return. Now keep in mind, these standard deviation and these returns are not for the asset, not for the, you can say, a single asset, but these are for portfolio. For example, this portfolio represents some group of asset, and that group of asset once again have some standard deviation, and it have its own, you can say, uh, uh, expected return. Now keep in mind, these portfolio are made up by allocating different weights, right? Not only by changing the assets in that, but also changing the weights. For example, you have seen right here that we have two assets, but whenever we are changing the weights of these two assets, we are able to reduce the risk, and it totally depend on its correlation. Same is the case right here. Whenever we are talking about this point, whenever we are talking about this point or this point, so we say it is actually a portfolio, but it then this portfolio change whenever we are changing the weight. So you can find out with first weight, the portfolio have that much of risk and return. Whenever we have changed the weight, so it have become that much. Whenever we have further changed the weight, so it have become that much. And same is the case, this is a different portfolio. Whenever we have started changing the weight, so it have moved from the here to here, and so as you can say, all of these portfolios are created. Now we have different points of portfolio. It means we have different combination of portfolio, different assets are being combined, and then their weights are being, you can say, differentiated. So we have created a group of portfolio. Now this curve, this curvature, this curve or this envelope point is known as efficient frontier. What does this efficient frontier, how does this efficient frontier help us in selecting a portfolio? For example, uh, consider, let me mark this one. Consider this. This is, for example, X, portfolio X. And consider this.
and consider this portfolio as Y. Which portfolio do you think is best, the X or Y? सर वाई, Why is best portfolio? क्योंकि उसका रिस्क कम है। वेरी गुड, रिस्क कम है। तो अगर इसका रिस्क कम है तो क्या, लेट्स से Z, क्या ये Z पर Y से भी अच्छी है? इसका पे रिटर्न भी कम है, वेरी गुड। ये अच्छी नहीं है वैसे। ये यानी अगर आप Z और X को देखें तो आप कहेंगे कि Z और X में डिफरेंट ये है कि X का रिटर्न ज्यादा है, लेकिन देयर इज सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ, यू कैन से, रिस्क increase as well. Whereas you can say compare it with Y, so you can find out the Y and X are holding equal returns. ठीक है, अगर ये लाइन मैं इस तरह खींच दूं, ठीक है, तो आप देखें X और Y की रिटर्न में कोई फर्क है? नो नहीं है। नो, लेकिन इसके रिस्क में फर्क है? ज्यादा है। ज्यादा फर्क है। तो इसमें हम कौन सी फिर कॉम्बिनेशन जो है पोर्टफोलियो की कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे, एक्स की या वाई की? ऑब्वियसली वी विल बी inclined toward y. Why? Because we say y is offering the same level of our you can say return with the lowest risk. Same is the case इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। कौन सा बेस्ट है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। तो जब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे ना, तो कोई भी अगर आप कहते हैं कि लो रिस्क इन्वेस्टर है या हाई रिस्क इन्वेस्टर है, द लो रिस्क और हाई रिस्क इन्वेस्टर विल ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट द पोर्टफोलियो फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, वो ये वाली पॉइंट से क्या करेगा, अपनी पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेगा। वो यहां से ये नीचे पॉइंट से he will never try to select, you can say, a portfolio from right here. He will leave this portfolio and he will try to always select a portfolio in which I have, you can say, encircled in this red graph. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अगर कोई कंफ्यूजन है। सर ये जो आपने अभी ड्रा किए ना, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो इन्वेस्टर होंगे ना, कुछ होंगे रिस्क सीकर इन्वेस्टर और कुछ होंगे रिस्क एवर्सर। ठीक है, वो जब भी सिलेक्शन करेंगे तो आप देखते हैं कि ये डिफरेंट, ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये है ए बी सी, ये तीन डिफरेंट एसेट हैं, उनके डिफरेंट पोर्टफोलियो क्रिएट किए गए हैं। ए में, फिर बी में, ए बी का, फिर बी सी का, ए बी और सी तीनों का। तो हम कहते हैं ये डिफरेंट पोर्टफोलियो क्रिएट किए गए हैं डिफरेंट वेट के साथ। वो तमाम जब कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं तो वो तमाम कॉम्बिनेशन में वो क्या करेंगे, वो जब सिलेक्ट करेंगे तो वो ये कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे, ये वाली बजाय ये वाले कॉम्बिनेशन। ये जो ऊपर रेड में मैंने इंसर्कल किए हैं, ये कॉम्बिनेशन वो क्यों प्रेफर करेंगे, ये एफिशिएंट फ्रंटियर पे मौजूद है। मतलब ये है कि ये वो वाली कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हाईएस्ट रिटर्न विद मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क देते हैं। चले एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूँ कंपैरिजन के लिए। आप ये देखें, ये वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों पॉइंट्स में अगर हम कहते हैं कि जो रिस्क प्रोफाइल है, ये यहाँ पे एक इन्वेस्टर है, it is also acceptable for the investor to take that much of risk. So he will be or she will be willing to invest in this, for example, A, or will be willing to invest in B portfolio. कौन सी पोर्टफोलियो वो, उसके लिए रिस्क का कोई मसला नहीं है, वो कहेगा हाँ ये इतना रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ। When he is eager to, you can say, take that much of risk, which is being shown right here at this point level. So what do you think? He will be willing to invest in A portfolio or B बी में, portfolio? B portfolio बी में क्यों? उसका रिटर्न ज्यादा Very है, good. हालांकि दोनों उसका का रिस्क रिटर्न सेम है। ज्यादा है, तो वो कहेगा कि I do not want to take a risk without taking any token for that risk.
So whenever they are taking a risk, so definitely they want to increase their returns. So he will prefer B, and you can see this B is where? This B is lying on the efficient frontier. Okay? So what is the efficient frontier? It shows a different group of portfolio with the highest with the highest level of return and the lowest level of risk. So usually what the you can say uh, the investor want to do, the investor will usually try to invest in such portfolio which is providing them a highest return but the lowest risk, isn't it? ठीक है, तो ये एफिशिएंट जो फ्रंटियर है, ये एफिशिएंट फ्रंटियर हमें क्या बताती है? ये डिफरेंट सेट ऑफ पोर्टफोलियोज बताती हैं, एंड व्हेन एवर वी ग्रुप देम डिफरेंट सेट ऑफ पोर्टफोलियो विद डिफरेंट वेट्स, हम वेट चेंज करते हैं. आपने देखा ना, हमने जो शुरू की थी एजम्पशन, हमने 2 एसेट को शुरू किया था विद इक्वल रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हमने देखा कि उसके कॉम्बिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर हमने देखा था कि चले डिफरेंट वेट नहीं डिफरेंट क्या है रिटर्न्स एंड क्या है रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, रिस्क है, डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न की सिक्योरिटी है विद हम कहते हैं कि ये तो हमने कह दिया कि यही है, अब ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो कोरिलेशन है वो चेंज हो रही है. So we have seen whenever the correlation was changing, so the combination was changing our returns, and it was, you can see, reducing our risk or it was increasing our risk. Then finally हमने ये कहा था कि let's suppose कि we are changing the weight. So we have seen that whenever we are combining two securities with a different risk and return, so it can influence, it can reduce our risk by taking the combination of correlation, that if there is a correlation, negative correlation can reduce the risk. And then same is the case that we will be able to increase the return but reduce the risk as well. तो उनकी combination से जो हमने ये portfolio create किए हैं, it depends on their risk and returns, and it depends on their combination of weights and correlations. So these are the different portfolios that has been created. And now we say that this circle, whenever we draw this circle, so this circle is actually presenting the efficient frontier, कि जब भी allocation होगी वो यहाँ से फिर allocate करना करेंगे. यानी ये है तो वही combination of A and B, लेकिन हम कहते हैं कि मुख्तलिफ वेट के साथ, तो वो ये कहेंगे कि E and B को मैं इस तरह कंबाइन कर दूं जिसमें मेरा रिटर्न तो हाईएस्ट रहे लेकिन मेरा लेवल जो रिस्क जो है वो मिनिमम हो जाए. लेकिन क्या तमाम के तमाम जो इन्वेस्टर हैं वो एक जैसे रिस्क प्रेफर करते हैं? नो सर. No. Different investors have different risk profile. Some of the investor would like to, you can say, invest in riskier security, and some of the investor will be willing to, you can say, ignore the risk and invest in the most safest, you can say, security. So right here, the question still remain. The question is that what is the optimal portfolio? Which one is the optimal portfolio in that? It will then depend on the utility of the investor. So whenever we are talking about the utility of investor, so we will come right here. The efficient frontier and investor utility. What is the investor utility? It means that satisfaction of the investor, right? How satisfied is the investor from investing in any security? An individual investor utility curve specify the trade-off he is willing to make between expected return and the risk. Trade-off between expected return and the risk. For example, let me show you this. What is on x-axis? X-axis right here. What do we put right here? Return or Return, expected return. We always put expected return right here. And what is here? Standard deviation return. Standard deviation, that is risk, right?
Now let me put some points. For example, one point is right here and one point is just right here. So what do you think? This is A and this is B. A high risk seeker investor would like to invest in A or would like to invest in B? ए में करेगा, B. ए में करेगा सर। कितने लोग B के फेवर में हैं? How many of you are in favor of B? बी में करेगा सर, हाई रिस्क। B में करेगा क्योंकि हम कहते हैं कि वो है हाई रिस्क सीकर है ना, उसको रिस्क अच्छा लगता है, उसको रिस्क अच्छा लगता है, रिटर्न अच्छा लगता है कि नहीं? ये सर पैसे डुबोने वाली बात है Yes, ना। sir. उसको सबसे रिस्क ज्यादा लेगा रिटर्न तो वो अच्छा लगता है या रिटर्न सबसे ज्यादा रिस्क अच्छा लगता है? The return. रिटर्न रिटर्न। तो अगर आप ये देखते हैं कि इसका रिस्क हाई है तो कभी भी इन्वेस्टर ये नहीं करेगा कि वो रिस्क सीकर है और वो कहेगा कि नहीं नहीं फिर भी मुझे ए नहीं चाहिए, ए का रिटर्न भी हाई है, रिस्क भी कम है, लेकिन मैं बी की तरफ जा रहा हूं क्योंकि मैं तो रिस्क सीकर हूं। रिस्क सीकर वो तब होगा अगर तो वो ये देखे। अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ। रिटर्न भी उसका ज्यादा ठीक है, अगर वो ये देखे, ये फॉर एग्जांपल वो ये देखे ये, ठीक है, और इसको मैं फॉर एग्जांपल नेम दे देता हूं कि ये है सी। अब वो क्या करेगा? अब वो करेगा कि नहीं भाई ना ए ना बी बल्कि मैं तो जाऊंगा सी के साथ। क्यों? क्योंकि मैं हाई जो है रिस्क सीकर इन्वेस्टर हूं। तो वो कहता है हाई रिस्क सीकर इन्वेस्टर हूं तो मुझे ए जो रिटर्न है वो भी हाईएस्ट चाहिए। ठीक है, तो अब हमने सीखना क्या है? यूटिलिटी कर्व। तो वो कहते हैं यूटिलिटी कर्व क्या है? वो है ट्रेड ऑफ बिटवीन दी रिटर्न्स एंड द रिस्क। तो यहां पे देखें, इसका ट्रेड ऑफ देखें, क्या ये ट्रेड ऑफ अच्छा है? वो कभी भी इसको प्रेफर नहीं करेगा। लेकिन इसका ट्रेड ऑफ देखें, इसमें ट्रेड ऑफ है सर। है। वो ट्रेड ऑफ क्या है? तो उसने ये रिटर्न छोड़ दिया इस रिटर्न के लिए, ये रिटर्न छोड़ दिया इस रिटर्न के लिए, लेकिन इस रिटर्न को पाने के लिए उसने ये रिस्क छोड़ के ये वाला रिस्क भी एक्सेप्ट कर दिया। तो ये ट्रेडिंग ऑफ है कि रिटर्न के साथ उसने अपना क्या कर दिया? रिस्क बढ़ा दिया। सो दिस ही इज ट्रेडिंग ऑफ। सो वी से इट टोटली डिपेंड कि उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना रिस्क वो डाल सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फोकस करूंगा ना कि फॉर एग्जांपल मैं फोकस जो है अब करूंगा ये रिस्क पे। ठीक है, अब मैं फोकस रिस्क पे कैसे करूंगा? वो मैं ये करूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यूटिलिटी 1 है, ये यूटिलिटी, या फॉर एग्जांपल ये यूटिलिटी 1 है, ये यूटिलिटी 2 है और ये यूटिलिटी 3 है। इसका मुराद क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टर 1 है इसकी यूटिलिटी जो है वो रिस्क के साथ कैसे बढ़ती है। वो रिटर्न के लिए तो खुश होता रहता है लेकिन कभी भी इससे ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। समझ आ रही है? ये वाली जो लाइन है ना, ये इससे ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि ये वाली मैक्सिमम मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। इसी तरह ये जो 2 है ये इससे ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, और ये जो 3 है ये फॉर एग्जांपल यहां से ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कभी भी फॉर एग्जांपल ये यूटिलिटी 3 वाला जो है वो कभी भी ये वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो करेगा, वो ए को छोड़ने के लिए तैयार है अगर तो कोई सिक्योरिटी यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सिक्योरिटी आती है कॉम्बिनेशन, या यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन आती है तो उसको लेने के लिए तैयार है। लेकिन कभी भी कोई सिक्योरिटी अगर यहाँ पे है तो उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि रिटर्न तो वही है जो मैं चाहता हूँ लेकिन रिस्क वो है जो कि मैं नहीं चाहता।
तो that's how every investor will have its own utility curve and totally depend. यहाँ पे जो मैंने utility curve लगाए, ये मैंने risk averse जो investor हैं risk averse, आप देख सकते हैं steep है, ये ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे, बहुत कम रिस्क है. देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला रिस्क ये 3 वाला ले रहा है, और इसके दरमियान ये वाला कौन सा ले रहा है, ये 2 वाला रिस्क ले रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ तक रिस्क ले रहा है. तो हम कह रहे हैं ये टोटली डिपेंड ऑन देयर रिस्क, लेकिन ये कम रिस्क ले रहे हैं. इसके अलावा एक और कम्बिनेशन मैं बता सकता हूँ, और वो कम्बिनेशन फॉर एग्जांपल अगर मैं बना दूं इस तरह का, ये 1, ये 2 और ये 3. अब ये देखें, ये पर्पल और पिंक में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि ये जो अब मैंने ये वाले जो बनाए, ये 3 प्राइम, ये U2 प्राइम, ठीक है, और ये U1 प्राइम, ये भी यूटिलिटी है. वो डिफरेंट रिस्क सीकिंग जो है, हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिस्क, एक था स्ट्रॉन्ग रिस्क एवर्सर और ये है लो रिस्क एवर्सर, यानी ये रिस्क एवर्स करना चाहता है लेकिन लोअर लेवल पे. तो आप देखते हैं कि इसका जो रिस्क एक्सेप्टेंस है वो ज्यादा है, इसमें कर्वेचर ज्यादा है. तो ऑन बेसिस ऑफ दीज यू कैन सी यूटिलिटी curve, we will be able to identify which is the best optimal portfolio for any investor or risk averse investor. So we have covered this point. The slope of efficient frontier curve decreases steadily as you move upward. ये क्या हो रहा है, ये देखें कि जैसे अपवर्ड हम मूव कर रहे हैं तो रिटर्न्स में जो डिफरेंसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं. जैसे हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो रिटर्न्स में जो डिफरेंसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, फ्लैट होते जा रहे हैं. देखें यहाँ पे ये फ्लैट है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिटर्न्स में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स में देखें तो रिटर्न्स फ्लैट हो रहे हैं. तो वो कहते हैं कि जैसे ही एफिशिएंट फ्रंटियर पे आप टॉप पे जाते हैं तो एक्चुअली वो इस तरह की बात कर रहा है कि आप फॉर एग्जांपल एफिशिएंट फ्रंटियर पे आप जाते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है, ये वाला, ठीक है. अब ये देखें वो कह रहे हैं ये वाला सेक्शन जो है ये ज्यादा फ्लैट है, और अगर ये वाला सेक्शन आप देखें, ये वाला सेक्शन, तो ये पीकिंग है, ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहां से यहां पे मूव करना, यहां से यहां पे मूव करना, आपके ख्याल में रिटर्न में कितना डिफरेंस आ रहा है? थोड़ा सा, लेकिन रिस्क में कितना डिफरेंस आ रहा है? ज्यादा. अब यहाँ पे देखें, एक ये है और एक ये है. अब इसमें से इसमें मूव करना, रिटर्न में कितना डिफरेंस है? ज्यादा है. और रिस्क में कितना डिफरेंस है? थोड़ा, ठीक है. तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कि थोड़ा सा रिटर्न्स और ज्यादा रिस्क, ये कॉम्बिनेशन, ये फ्लैटर लेवल पे कॉम्बिनेशन जो है कभी भी यूटिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता. जो यूटिलिटी क्रिएट करेगा वो ये वाली, ये जहाँ पे इन्वेलप हो रहा है, जहाँ पे आप वो गुब्बारा फैलाते हैं ना, तो जहाँ पे गुब्बारा निकला हुआ होता है, वो निकली वाली जो चीज है, वो कहते हैं वहां पे हमेशा कॉम्बिनेशन बनेगी. So these are two interaction. It means the utility and the slope of efficient frontier. कि एक हमारे पास utility curve है और एक efficient frontier है. इन दोनों को जब हम combine करते हैं, these two interaction will determine the particular portfolio selection by an individual investor. और इसके लिए यहाँ पे, बल्कि ये टेंजेंसी हम पहले देख लेते हैं कि क्या है. The optimal portfolio has the highest utility for a given investor. Optimal portfolio क्या है? वो पोर्टफोलियो है जो कि इन्वेस्टर की सेटिस्फैक्शन जो है हाईएस्ट लेवल पे ले जाए. हाईएस्ट लेवल कौन सी है? वो हाईएस्ट लेवल ये है कि उसका हाईएस्ट रिटर्न हो
और लोवेस्ट रिस्क हो, या उसका एक्सेप्टेबल रिस्क रेंज हो, ठीक है। हाईएस्ट यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वैसी रिस्क नहीं लेना चाहते, हम रिस्क तभी लेना चाहते हैं जब हमें टोकन ऑफ जो है रिवार्ड मिले उस रिस्क का। तो इसलिए उसकी कॉम्बिनेशन के लिए वो क्या कहते हैं कि द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हैज द हाईएस्ट यूटिलिटी ऑफ गिवन इन्वेस्टर। जो यूटिलिटी हाईएस्ट यानी जो हाईएस्ट यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा वही ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहलाएगी। इट लाइज एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी क्या होती है? जहां पे दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो आपको फॉर एग्जांपल ये मैंने यूटिलिटी की लाइन लगाई कि ये यूटिलिटी है, इन्वेस्टर यूटिलिटी। इन्वेस्टर यूटिलिटी किसकी है? रिस्क एंड रिटर्न। यानी इन्वेस्टर देखता है कि मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूं इसकी खातिर, यानी इतना रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूं ताकि मेरा इतना रिटर्न्स क्या हो जाए, इजाफा हो जाए, ये मेरा ये रिटर्न इजाफा हो जाए। फिर वो कहता है कि मैं इवन इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं अगर तो मेरा रिटर्न यहां तक बढ़ जाए, ठीक है, और या इसको छोड़ने के लिए तैयार हूं ताकि मेरा जो है रिटर्न यहां से यहां तक बढ़ जाए और मैं रिस्क इतना बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे वो ज्यादा नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल ये इसका मैक्सिमम रिस्क प्रोफाइल हो गया। ये कहेगा कि यहां से अभी मैंने आगे नहीं जाना। तो हमने देखना है कि अगर यहाँ पे कोई चीज आती है पोर्टफोलियो में तो वो उसका क्या बनेगा, आप कहेंगे कि इसका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बन सकती है। लेकिन ये ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ये तो उसकी यूटिलिटी ये है, क्या है? यूटिलिटी कर्व है। अब मैं अगर यूटिलिटी कर्व के साथ एफिशिएंट फ्रंटियर बनाऊंगा और फॉर एग्जांपल मैं एफिशिएंट फ्रंटियर ये बना देता हूं कि ये एफिशिएंट फ्रंटियर ये जा रहा है, ठीक है। अब आपके ख्याल में क्या ये वाली सिलेक्ट होगी या ये वाली? तो हम कहेंगे यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहे हैं ना यूटिलिटी, यहाँ पे जो भी पोर्टफोलियो होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ये वाली पोर्टफोलियो सिलेक्ट नहीं होगी, ये वाली पोर्टफोलियो भी सिलेक्ट नहीं होगी। ये वाली पोर्टफोलियो क्यों सिलेक्ट नहीं होगी? क्योंकि इसका रिटर्न बहुत कम है। ये वाली पोर्टफोलियो क्यों सिलेक्ट नहीं होगी? क्योंकि इसका रिस्क ज्यादा है। और ये जो इन्वेस्टर है, ये यूटिलिटी जिसकी यूटिलिटी 2 है ये वाली, तो वो यहाँ पे सिलेक्शन करेगा। वो कहेगा कि ये मेरी ऑप्टिमल क्या है, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। इसी तरह अगर मैं कोई और ले लूं, फॉर एग्जांपल एक और क्या है, एक इन्वेस्टर है और उसकी जो यूटिलिटी है उसकी यूटिलिटी कुछ यूं है। उसकी यूटिलिटी कुछ यूं है। तो आपके ख्याल में अब वो कौन सी पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेगा? और पोर्टफोलियो के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल देता हूँ। आप ये लेके जो है जैसे इकरा ने कोशिश की थी, आप इसमें मुझे बता सकते हैं ये जो पिंक वाला मैंने यूटिलिटी लाइन लगाई है, ये पिंक वाली यूटिलिटी लाइन यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये यूटिलिटी 2 जो है उसके लिए आपके ख्याल में वो कौन सी पोर्टफोलियो पे ज्यादा क्या करेगा, इन्हिसार करेगा कि मुझे ये पोर्टफोलियो चाहिए और उस पर वो सेटिस्फाई रहेगा? इंसर्कल कर सकते हैं। वेरी गुड अली अवान, वेरी गुड। दिस इज आप देख सकते हैं कि हमारी एफिशिएंट फ्रंटियर और ये जो हमारी यूटिलिटी है ये टेंजेंट हो रही है, एक दूसरे के साथ लग रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अली ने ड्रॉ किया तो मैं ये कहूंगा कि वो यहाँ से ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। वो यहाँ पे ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है लेकिन वो रिटर्न्स को ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है। तो इन पोर्टफोलियो में ये मैक्सिमम जो है पॉइंट है जहां पे वो रिटर्न्स कमा सकता है। तो it totally then depend what is the optimal portfolio. Optimal portfolio is a tangent line between the utility curve and efficient frontier of the portfolio.
तो यही यहाँ पे भी शो हो रही है। ये ब्लू लाइन क्या है? ये ब्लू लाइन एफिशिएंट फ्रंटियर है पोर्टफोलियो, यानी मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियोज हैं। और हम कहेंगे कुछ पोर्टफोलियो इस लाइन के साथ, एक कर्व के साथ क्या है, रहती हैं। तो हम कहते हैं कि डिफरेंट क्या हैं, इन्वेस्टर हैं। अब ये जो इन्वेस्टर 3 है, इसकी कोई सिलेक्शन ये करेगा, कोई पोर्टफोलियो ये सिलेक्ट करेगा, ये वाला, ये जो 3 है, ये इन्वेस्टर 3 जो है, ये कोई इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। क्योंकि वो क्यों? क्योंकि वो जो कर्व ये उसके साथ टच नहीं हो रहा यूटिलिटी कर्व टच के साथ। टच टच नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो इतना रिटर्न चाहता है, ये देखें यहां से वो चाहता है, तो वो कहता है इतना रिटर्न मुझे चाहिए और इतने रिस्क पे चाहिए। तो इस इतने रिस्क और इतने रिटर्न्स पे कोई भी सिक्योरिटी या हम कहते हैं पोर्टफोलियो मौजूद नहीं है। उसने कहा ठीक है, मुझे रिस्क बढ़ाना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ तुम रिस्क बढ़ा दो, तो तुम्हारे लिए कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगी। उसने कहा ठीक है, मैं यहाँ से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। तो यहाँ से वो अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइन खींच देता हूँ एक, सपोज कीजिए ये, ठीक है, और वो कहता है कि मैं इससे ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूं, यहां तक। वो कहता है कि मैं यहां से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। हम उसको अगर ये पॉइंट दे दें कि अच्छा ठीक है, आप ऐसे करें, आप ये वाली पोर्टफोलियो ले लें, ये, क्या वो ये वाली पोर्टफोलियो लेगा? क्योंकि वो इसका रिटर्न कम है। हाँ, वो कहेगा कि नहीं भाई, इतना बड़ा मैंने रिस्क लगा दिया, ये जो पोर्टफोलियो अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए तो मैं तभी इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो आप देखेंगे कि ये जो इन्वेस्टर है ना, ये इन पोर्टफोलियो को पसंद नहीं करेगा, तो इसके लिए इसमें कोई भी कम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अगर तो मैं अब बात करूं कि अब आप इस इन्वेस्टर की बात करें, इस इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो कहाँ पे लाई करती है जिसपे ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहेगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। आप खुद इसी तरह को ये वो पॉइंट मुझे बता दें कि सर ये इसकी बेस्ट जो है चॉइस होगी। एनोटेटर लेके अली, वेरी गुड। अच्छा, ये अली कर रहा है, ये देखें यहाँ पे जो है ये बेस्ट इसके लिए कॉम्बिनेशन बन रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो यहाँ से देख रहा है कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न, और जितनी उसकी सेटिस्फेक्शन है, उतना ही उसका रिस्क है, और जितना वो एक्सपेक्ट कर रिटर्न का, उतने ही वो रिटर्न भी कर रहा है। तो वो ये यूटिलिटी ऑफ टू, यानी सेकंड जो इन्वेस्टर है, उसके लिए ऑप्टिमल सिक्योरिटी इस एफिशिएंट फ्रंटियर से मिल जाएगी। और अगर मैं कहूंगा कि इसके लिए, ये जो इन्वेस्टर 1 है, इसके लिए कौन सा पॉइंट होगा? ये नीचे वेरी गुड निबा, ये वाला पॉइंट। तो निबा थोड़ा सा आपने वो उसकी तरफ चले गए, ये होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये इसके लिए बन जाएगा। तो मतलब क्या है, हम कहते हैं कि जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है, इट इज अ टेंजेंट बिटवीन एफिशिएंट फ्रंटियर एंड द यूटिलिटी कर्व। जहां पे यूटिलिटी कर्व और एफिशिएंट फ्रंटियर आपस में मिलते हैं, वो इसकी जो है बेस्ट पोर्टफोलियो होगी। अच्छा, अब इसमें एक और भी मजेदार सी बात हम कर देते हैं, मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप मुझे इसका बताएंगे, ये अभी ये दो जगह नहीं, फॉर एग्जांपल इसका नहीं बल्कि इसका, ये तो दो जगह पे टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है और यहाँ पे भी टच हो रहा है। तो आपके ख्याल में इसके लिए ऑप्टिमल ये वाली है या ये वाली? ऑप्टिमल जो इसकी है, ये दो जगह टेंजेंट हो रही है, दो जगह पे लग रहा है, तो इसके लिए जो ऑप्टिमल होगा वो कौन सी होगी? ये टॉप पे, ये जो है ये होगी। ये क्यों होगी? हम कहेंगे ये तो भी लग रही है, हाँ ये लग रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी सेटिस्फेक्शन कम है। आप देखते हैं कि ये इतना सेटिस्फाई है, इसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, और ये बढ़ते साथ ही इसके लिए
कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो और भी मौजूद हैं, और एफिशिएंट फ्रंटियर में यहाँ पे जो पोर्टफोलियो मौजूद होंगी वो उसको ही सिलेक्ट करने में खुश रहेगा, यानी इसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल पे रहेगी। अच्छा, ये डिमिनिशिंग लेवल की हम बताते हैं। देखें, ये आप देखते हैं ना कि इससे इसके बाद यानी रिस्क बढ़ाने से इनका कोई भी आप देखते हैं कि वो नहीं हो रही, यूटिलिटी नहीं बढ़ रही, यूटिलिटी यहाँ पे डिमिनिश हो रही है कि यहाँ से ज़्यादा हमने नहीं बढ़ाना। ठीक है, तो ये डिमिनिशिंग यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी लग जाता है। सो दीज आर एक्चुअली आर यू कैन से दी पोर्टफोलियो का जो हमारा चैप्टर था, उसमें हमने देखा था कि हाउ वी कैलकुलेट अ पोर्टफोलियो and then how we can select an optimal portfolio. So keep it in mind, optimal portfolio is then dependent on the utility curve of any investor. ठीक है, तो ये यूटिलिटी कर्व ऑफ इन्वेस्टर ये तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट करना देखेंगे। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, बल्कि मैं आपको 2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जाम में वो पहले से बता देता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन, ये सीन क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर रहे हैं? सर 1 मिनट। जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आप लोगों का कि आपको 1 मिनट मैं सर। चॉइस दे रहा हूं, अभी से आप काम शुरू कर दें। एक तो आपने अपने चॉइस के मुताबिक एक इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी होगी, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास 35 इंडस्ट्री है ना, तो हम हैं कितने लोग हैं? हम हैं 20 लोग क्लास में। ठीक है, बल्कि मैं आप लोगों को आपकी सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि अभी मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट ने एक ही कंपनी ले ली थी, फौजी सीमेंट, तो इस तरह ये पे कोइंसिडेंस ना हो जाए। मैं आप लोगों को कल तक आपकी इंडस्ट्री इंडिकेट करवा दूंगा कि आपकी ये इंडस्ट्री है, आपकी ये इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से मुराद एक कंपनी नहीं होती, इंडस्ट्री से मुराद क्या होता है? सर जिस तरह एक फार्मास्यूटिकल एक पूरी इंडस्ट्री है, एक सेक्टर है। फार्मास्यूटिकल पूरी इंडस्ट्री है, ऑटो पार्ट पूरी इंडस्ट्री है। अब आपको मैं कल तक इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा वो इंडस्ट्री का ग्रुप। फॉर एग्जांपल किसी का होगा ऑटो पार्ट, किसी का होगा ऑटोमोबाइल, किसी का होगा फार्मेसी, किसी का होगा सीमेंट, टेक्सटाइल, किसी का होगा एनर्जी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब उस इंडस्ट्री में आप लोगों ने क्या बनाना होगा? आप लोगों ने क्रिएट करनी होगी इंडेक्स। क्या? इंडेक्स। और इंडेक्स सिलेक्शन के लिए आपने सिलेक्शन के लिए कोई भी उसकी वो जो वो है ना, क्या कहते हैं, जो हम उसमें सिलेक्शन कर रहे थे कि हमारा जो KC 100 इंडेक्स है उसकी सिलेक्शन क्या होती है, उसकी सिलेक्शन आपने नहीं करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के टॉप जो परफॉर्मर हैं, यानी टॉप जो उसकी क्या होंगी कंपनीज जो हैं उस सेक्टर में, हाँ, टॉप कैपिटलाइजेशन जिसकी होगी, उसका आपने बनाना होगा इंडेक्स। और इंडेक्स आपने बनाना होगा कौन कौन से मंथ के डेट में, वो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमारा शुरू होगा इंडेक्स। आपने जो इंडेक्स बेस पीरियड लेना है वो आपका इंडेक्स बेस पीरियड बनेगा जनवरी। ठीक है, जनवरी आपका होगा बेस पीरियड, यानी फॉर एग्जांपल आप 1 जनवरी 2 जनवरी जो है आपका बेस पीरियड हो जाएगा। अब बेस पीरियड के साथ आपने पॉइंट्स जो है कंसीडर करने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आपने 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी, फिर 15 के बाद आपने 28 फरवरी, ये फरवरी में हो जाएगा। फिर इस तरह आपने मार्च में 15 मार्च और 31 मार्च, ठीक है, ये मार्च में हो जाएंगे। ये आपने क्या करना है, बेस पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। और फिर मार्च और फिर अप्रैल और इसी तरह मई। ठीक है, ये आपके साथ मुख्तलिफ बेस पॉइंट्स आ जाएंगे। आपने यानी ये बेस पॉइंट्स हैं, ये 100 होगा,